are not scored more than 65 in any of the UPSC prelims examination. But in last test, I was able to score about 105 marks. Yeah, I know. This was a testimonial by one of our students at Mentor Sir. So we have made it a very holistic program. We have helped some people who have not even scored very good marks, but with right guidance, we were able to help them. So before starting this, I'll tell you what it is exactly and why it is different. So this is not a proper any analysis. I'll give you a smart analysis here. By smart analysis I mean is you just look at the first question. जो इसके अंदर क्वेश्चन है, you realize कि ये जो अभी historical background constitution से है, right? So we read this and we will do this with you. It will be a live MCQ solving session. So you see that we have given the correct explanation. है ना? मतलब content है आपके पास, you can revise that better. But what happens is इतना content आपको एग्जाम में एक तो पढ़ना, first issue. Second issue is application, because many of you study, पर उसको apply कैसे करना है, that is the thing. और UPSC के examiner का mindset कैसे है? My last video, which was about this understanding of UPSC mindset, examiner's mindset only, where I have told them how I was able to score 118 marks, 115 marks consecutively in prelims, which is above 32 marks above the cutoff every year. It is not that I am reading any different books. मैं भी लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ हिस्ट्री के लिए. Still I am able to score way above the cutoff, right? So that thing which I have gathered over the year, मेरा जो experience है, I put that into a smart PTP analysis. हर एक क्वेश्चन के नीचे कि क्या यूपीएससी का ट्रैप है, व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट यू, या क्या कीवर्ड्स है यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो सकता है, ये होलिस्टिकली इसमें कवर्ड है, राइट? सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द वीकली टेस्ट जो हमने डे वाइज टॉपिक वाइज पॉलिटी के हर एक हमने एक मेटिकुलस प्रोग्राम बनाया है, ठीक है? तो उसके अंदर आई टेल यू दैट इफ यू हैव नॉट गिवन द टेस्ट यू कैन गो टू द मेंटोर सर लिंक. यू कैन सी ये जो MS पोर्टल है, Mentor Sir portal, you can open that. If you have not signed up, you can write that you don't have an account, you sign up there. उसके बाद you just fill your ID. I fill your demo ID so to help you so that you are able to write this test. Then this video will help you 100 times more rather than अब just इस वीडियो को अभी देखो, right? As you can see, इसके अंदर we have made weekly test of polity. मेरे साथ solve करो, and this will be a live MCQ class. I will also see your comments on the Telegram group itself. So see, the first question I told you it is from historical background of the Constitution. How our Constitution and Indian polity has evolved. तो इसके अंदर जो first chapter है, I'll tell you very practically, this comes out to be most difficult chapter of Lakshmikant because ये याद नहीं होता, right? और इसमें मिस्टेक्स की जो चांस है दैट इज वेरी मच, राइट? तो वी रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. सेकंड, इट सेज इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. थर्ड इज इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी. How many of the above statements are correct? In UPSC, this trend has increased. How many of the above statements are correct? So, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, you can go by the elimination. जैसे first is it made the governors of Bombay, Bengal, Bombay and Madras independent of one another. No. Regulating our Act of 1773 में, if you see philosophical wise, centralization increase हो गया था, right? East India Company ने after Battle of Plassey and Buxar जो 1757 और 1764 में हुई थी, उसके बाद इंडिया में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी. तो 1773 एक्ट उसको प्रमोट कर रहा था, राइट? तो उसमें इंडिपेंडेंट नहीं किया था, इन सबको बॉम्बे, बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट कर दिया था. एंड जो गवर्नर था उसको, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको ज्यादा पावर दे दी थी, बिकॉज बंगाल वॉज दी गढ़ था उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का. सो दैट स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी रॉन्ग. और दूसरी बात, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. अब ये थोड़ा मिसलीडिंग लग सकता है बिकॉज दोनों में बॉम्बे, मद्रास ही सब कुछ है. यू कैन गेट कंफ्यूज. व्हाई? बिकॉज यूपीएससी में क्लासिकल ये चीज है दैट दे विल पुट अदर कोई एक्ट. फॉर एग्जांपल ये जो हाई कोर्ट्स बने थे, दे वर मेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एज आई हैव मेंशन्ड हियर, राइट? तो उन्होंने उसका यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाला बिकॉज 1773 एक्ट के अंदर
सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था ऑफ कलकत्ता, राइट। तो दे हैव ट्राइड टू कंफ्यूज अस। तो आपने ये याद रखना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, कोई ना कोई स्टेटमेंट मिसमैच करेंगे। तो आपको एक माइंड में टाइमलाइन याद रखनी है। व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल गलत हो गया, राइट। यू कैन मेक अ टेबल। इसको याद करने का तरीका क्या चैप्टर को, कि 1773 में क्या हुआ था एक्ट में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आपका कौन सा आ गया, काउंसिल एक्ट्स आ गए, चार्टर एक्ट्स आ गए। ये आप इनका टेबल बनाओ, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ दीज, ठीक है। और यू अदर थिंग यू शुड ऑलवेज नो इज कि ये जब 1773 से लेके 1857 यहाँ सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। बट आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लेके आएगी, आइदर भी 1861 का काउंसिल एक्ट, 1892 मिलो मॉन्टे रिफॉर्म्स 1909 एक्सेट्रा, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पीक से 1857 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिलोसफिकल चीजें जो आपको याद रखनी है पूरे चैप्टर में। यू डोंट हैव टू मक अप द चैप्टर, मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, मक अप नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि उस चीज को आप कैसे फिलोसॉफिकली समझ सकते हो। बिकॉज आपके ब्रेन में क्या है, आप स्टोरी टेलिंग से पढ़ोगे ना, इट विल हेल्प यू मोर, साथ में चार्ट्स बना के। सो इसमें आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब यूपीएससी व्हाट हैपेंस इज, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हर कोई जगह गलत होता है, राइट, जो जनरली बहुत ज्यादा कोचिंग में चलता है ना, और इवन यूट्यूब पे भी। बट आई टेल यू कि स्मार्टली आपको उस चीज को फॉलो करना है। इट मे बी कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है, बट इन पॉलिटी स्टेटमेंट्स आर जनरली राइट, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एग्जामिनर का माइंडसेट है, लाइक पॉलिटी स्टेटमेंट सही होने का चांस ज्यादा होता है, दैट मे बी रॉन्ग इन फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक है, वहां एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होंगी, दे मे टर्न आउट टू बी रॉन्ग बट नॉट हियर। तो आपको ये पता होना चाहिए 1773 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को छोड़ के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी रिकॉग्नाइज किया था। तो थर्ड इज करेक्ट, योर आंसर कम्स आउट टू बी only one, right? So first I told you how to understand this question और इस चैप्टर को आपने कैसे पढ़ना है, right? सेकंड क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे है, टेस्ट में हमने डाला था। तो इसका आपने तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, दैट विल एक्ट एज योर रिवीजन, दैट विल एक्ट एज योर रिवीजन। सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो लेस देन 90 days, है ना। तो मेनी ऑफ यू आर स्कोरिंग लास्ट टाइम 50 मार्क्स या 60 मार्क्स, अब कट ऑफ विल बी मोर देन 90, ये मान के चलो, राइट। यू हैव टू स्कोर मोर देन दिस टू बी इन सेफ जोन। इस बार आंसर की भी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इन 3 days, यू विल नो कि यू विल क्लियर और नॉट। सो वन थिंग इज यू गो अबाउट रीडिंग द बुक्स, कि आपने एक बुक पढ़ी, 2 पढ़ी, आपने 10 की 10 सब्जेक्ट की 10 बुक पढ़ ली, है ना, बट उससे आपका ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। इट मे बी साउंड लाइक थोड़ा गलत एडवाइस, बट दिस इज द एक्चुअली राइट थिंग व्हिच टॉपर्स डू। आपको यू हैव टू डू रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज। आपको अभी इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है। एमसीक्यू से व्हाट यू अंडरस्टैंड इज दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस चैप्टर, इस टॉपिक को मेरा वीक है, तो उसका आप दोबारा चैप्टर पढ़ोगे, आपका ज्यादा एनालिटिकल पावर होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा रिमेम्बरेंस भी होगी। तो अभी से ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू लगाने हैं, जो भी हम करा रहे हैं, कोई जिस चीज कोचिंग की कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन थ्रू एमसीक्यूज। दिस विल हेल्प यू इंक्रीज एटलीस्ट 15-20 मार्क्स, राइट। बाकी स्मार्ट एनालिसिस है, उससे आपके और 10-15 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो you can easily score 90+. This is a very practical strategy. I'm not making anything up, right? So smart PTP analysis, which is our main feature and unique feature. यहाँ पे आपको बता दो यूपीएससी क्लासिकल ट्रैप क्या है। यहाँ पे 1861 की जो एक्ट की जो प्रोविजन है, उन्होंने 1771 में डाल दी टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, और यूपीएससी ऐसे करता है। तो दिस शुड स्टिक इन योर माइंड, कैसे हो सकता है, राइट। सिमिलरली सेंट्रलाइजेशन कब हुई थी, डिसेंट्रलाइजेशन कब हुई थी इन एक्ट्स के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो एग्जामिनर जानना क्या चाहता है आपको, कि कौन सी प्रोविजन किस एक्ट के अंदर है, ये बेसिक आपको बताना चाहिए। ऑल्सो अंडरस्टैंड द ग्रेजुअल सेंट्रलाइजेशन व्हिच आई टॉट यू, ये एग्जामिनर का माइंडसेट है इस चैप्टर में। एग्जामिनर को ये नहीं जानना कि छोटा छोटा डिटेल के क्रिश्चियन मिशनरीज किस एक्ट में आए थे, वो जानना चाहता है कि आपको ब्रॉड इनका चीजों का पता है कि नहीं। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि यू हैव मेनी थिंग्स टू रीड, राइट। और ये जनरल स्टडीज का पेपर है ना, नॉट स्पेशलिस्ट स्टडीज। तो आपको उस हिसाब से स्मार्टली खेलना है, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर 100+ मार्क्स, राइट। तो इसमें तो आपको बताया मैंने, जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, इस तरीके से यू कैन रिमेंबर दीज थिंग, कि इनके ब्रॉडर फीचर्स क्या थे, राइट। 1861 में काउंसिल की बात की, बजट की बात की 1892 में,
1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की, 1996 में जजमेंट मोशन की. नाउ दिस शुड बी योर थिंग जो आपको याद करना है इसमें बस. अब इसमें इफ एनी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कम्स, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. इसके बेसिस पे मैं आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन कम्स आउट टू बी रॉन्ग बिकॉज ये 1892 की इंडियन काउंसिल एक्ट पे था. सेकेंड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का, ये कहाँ पे था? 1909 में. करेक्ट. सो सेकंड ऑप्शन इज राइट. सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में भी अजेंडमेंट मोशन की बात की गई थी. थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. तो 2 and 3 राइट हो गया. तो अंडरस्टैंड कि एक ब्रॉडर फ्लो चार्ट बना लेना, या एक टफ चीज को चार्ट बना के छोटा, या उनका कोई न्यूमोनिक बना के, या उनकी बेसिक जो ब्रॉडर डायमेंशन है ना, वो आपको याद करनी. यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग जो 18 का इस काउंसिल एक्ट 1861 में लिखा है. उनके जो ब्रॉडिंग रिगार्डेड एज मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. नाउ यूपीएससी में व्हाट इज जनरली हैपनिंग इन ट्रेंड इज इन पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफीज हैं उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. राइट. तो वन ऑफ देम इज रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ किसके अंदर आता है? एविडेसी का कंसेप्ट है, आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन है, व्हिच इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर आता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. राइट. तो यूपीएससी ने कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करनी है आपकी. ठीक है. इसके बेसिस पे आई आल्सो टेल यू कि और कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. राइट. एक बहुत होलिस्टिक वे ट्राई के एक इसके अंदर बनाए. सो फर्स्ट इज योर लिमिटेशंस ऑफ पावर. तो लिमिटेशंस ऑफ पावर, यस, रूल ऑफ लॉ में फर्स्ट रिमेंबर कि क्या क्या आता है. फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ एनी arbitrary powers. Second is equality before law. Right. So these are the two things जो rule of law में आती हैं. Third is that individuals are the source of right. Constitution से ऊपर है. But इंडिया में क्या होता है? Constitution is the source of right of all individuals, citizens especially. Right. तो ये आपको याद रखना है कि थर्ड स्टेटमेंट, जो थर्ड इसका पार्ट है रूल ऑफ लॉ का, एविडेसी का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं अप्लाई होता. राइट. सो उसके बेसिस पे लिमिटेशंस ऑफ पावर इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज आर्बिट्री पावर्स की एब्सेंस की बात की है. सेकंड इज इक्वालिटी ऑफ लॉ. करेक्ट. तो अब मुझे मार्क कर लेना दैट 1 and 2 इज करेक्ट. तो मेरे 2 एलिमिनेशन हो गया. अब यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में यू विल बी कंफ्यूज कि दोनों में से या दोनों सही हो सकते हैं या दोनों भी गलत हो सकते थे. राइट. बिकॉज यू हैव नॉट रेड अबाउट लिबर्टी एंड सिविल राइट्स अंडर दिस. बट यूपीएससी ने सिंपल कर दिया कि 4 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. राइट. नाउ यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट 3. नाउ थिंक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी के बेसिस पे रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पे बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म चलता है. राइट. तो उसके अंदर पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं से एक सोशलिस्टिक कंसेप्ट लगता है. आई थिंक ये कहीं ना कहीं से फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेशन में है. करेक्ट. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में होना, ये कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठ रहा है. और दैट इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बजट गवर्नमेंट, ये किसका पार्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज का. ये कहीं ना कहीं सोवियत इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड है. सो थर्ड इज रॉन्ग. यूपीएससी को बस यही चेक करना का कि यू नो द डिफरेंस कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसका मिक्स करके उन्होंने जस्ट आपको कंफ्यूज करना था. मोस्टली पीपल may have ticked 1 2 3 4 considering कि ये दोनों ही सही हो सकते हैं, या एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं. बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना होगा. राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. सिमिलरली आई थिंक 2018 में देयर वाज वन क्वेश्चन अबाउट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. अब जो उसकी स्टेटमेंट थी ना, लाइक नो लॉ, इफ देयर इज नो लॉ देयर विल बी नो लिबर्टी. लिबर्टी का मीनिंग है एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट, ऐसा कुछ था. अब इफ यू आर अ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, आपको ऑप्शन है, तो दैट क्वेश्चन मे बी सिंपल फॉर यू. राइट. बट अगर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं? फर्स्ट तो आपको उसके अंदर ऐसे स्टेटमेंट एलिमिनेट करने होंगे जो हमारे इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में लिबर्टी के अगेंस्ट हैं, जो उसकी फिलोसफी से सेट नहीं बैठ रही. राइट. तो आपको वो ध्यान रखना है कि जो कोर फिलोसफी है उसके अंदर अगर नो लॉ नो लिबर्टी की सही था, उसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई लॉ नहीं होगा इंडिया में तो दे विल बी नो लिबर्टी. बिकॉज इंडिया में 2 कंसेप्ट है लिबर्टी के, एक नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी. राइट. यू शुड आल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. राइट. तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं. राइट. ऑल्सो लुक आउट फॉर दिस क्वेश्चन. राइट. अगर आपको प्रॉब्लम आता है, यू कैन अगेन मैसेज टू आवर मेंटोर सर, आई वांट कि आप इस पे दिमाग लगाओ, सो दैट आपको इसकी जो लर्निंग है इसके अंदर अप्लाई हो सके. राइट. सो अगेन कंटेंट भी दिया है, and we have told you कि how UPSC tries to insert
such morally sounding statement like people responsibility to trap students. ये आपको माइंड में बार बार रखना है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, बिकॉज वी हैव done that based on our own experience ke how we are able to score 110 plus, right? Even other Tiwari sir also, and also we have done that on basis कि UPSC का trend क्या आ रहा है last 10-15 years, right? So आपको देखना है कि rule of law is about limiting the government, ensuring equality, but not about duties of the citizens. तो ये आपको conceptual clarity होनी चाहिए, right? Next is, who among the following warned his colleagues that Constituent Assembly was British made and was working the British plan as British would like it to be worked out, right? तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो क्रिटिसिज्म्स है उसकी बात कर रहा है. तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा आएंगे. आई विल गिव यू एन एग्जांपल जो रिसेंटली अभी 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है. अब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन करनी है कि जो आपको ऑलरेडी नाम पता है, जैसे बी आर अम्बेडकर है, ही वॉज नॉट क्रिटिसिज्म नहीं करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ही वॉज अ ड्राफ्टिंग मेंबर ना, तो वो तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. बी एन राव वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, वो भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. अच्छा, यहाँ आई एम गोइंग विद व्हाट आई ऑलरेडी नो. मुझे नहीं पता सोमनाथ लहरी का, ज्यादा मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही वॉज अ जनसंघ फाउंडर, तो मुझे कुछ नॉलेज है उनका, राइट. अब जो मुझे 100% नॉलेज है दैट बी आर अम्बेडकर ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. सिमिलरली बी एन राव बिकॉज ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, राइट. तो ये एलिमिनेशन हो गए. अब 50% रूल है. इफ यू हैव ऑलरेडी डन 50% ऑफ द एलिमिनेशन, तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट, बिकॉज यू हैव गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, राइट. अब व्हाट हैपेंस इन यूपीएससी इज कि वो जो लेसन नोन नेम्स होंगे ना, जो जनरली ये आंसर होगा उसके अंदर, उनको मिक्स कर देंगे इन लोग के साथ. अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के फाउंडर थे, अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट बोला होता तो कहीं ना कहीं यू वुड हैव रेड दैट, करेक्ट. तो अगर आपने नहीं रीड किया तो ट्रस्ट करो अपने उसमें कि ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए. अब जो बचा स्टेटमेंट है दैट इज द आंसर, तो ए इज द आंसर. अच्छा, दिस क्वेश्चन वाज नॉट के रैंडम क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन सीएपीएफ, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वहां से क्वेश्चन रिसाइकल होके सीएससी में आ जाए नेक्स्ट ईयर, राइट. तो ये आपको रखना है कि इन क्वेश्चंस को भी आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट. ये क्वेश्चन को रटने की नहीं, इन क्वेश्चन को अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. So it is mentioned here, जो हमने already टैप किया कि B.R. Ambedkar defended the assembly work, श्यामा प्रसाद मुखर्जी did not make this remark, B.N. Rao the constitutional advisor थे, ठीक है. तो इसमें स्मार्ट एनालिसिस में I told you that जो कोट है ना, it is from a lesser known member. Similarly, there was a question in history, modern history में, that which of the following is the author of विट्ठल विध्वंस. मॉडर्न हिस्ट्री में भी करेंगे क्वेश्चन. तो उसमें 2-3 स्टेटमेंट्स थी. उसमें बी आर अम्बेडकर था एक, आई थिंक सो ज्योतिबा फुले का नाम भी था. तो उसमें आई हैड दिस नॉलेज कि इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला, बिकॉज आई हैव रेड सो मच अबाउट ज्योतिबा फुले, आई हैव रेड अबाउट बी आर अम्बेडकर आल्सो इन मॉडर्न हिस्ट्री, इन पॉलिटी. सो अगर उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट, उन्होंने अगर ऐसा कोई बुक लिखा होता, आई वुड हैव नोन दैट. तो उनको एलिमिनेशन करके जो लास्ट ऑप्शन आया था ना, आई थिंक गोपाल बाबा समथिंग, वो आंसर था, राइट. अब ऐसा आप बहुत ज्यादा स्टैटिक स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे ना, सॉरी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे कई जगह, तो उसमें एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ऐसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली. आपको ऐसे इस लर्निंग को हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है जो आपको लगता है कि ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता. तो आपकी रेंज में आ जाएंगे फ्रॉम, मैंने यहाँ रिस्की मार्क किया कि इसको यहाँ गलत हो सकता है, बट दिस कैन बी अटेम्प्टेड इफ यू हैव राइट नॉलेज. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू ट्रस्ट योर नॉलेज, यू हैव टू ट्रस्ट योर नॉलेज, दैट इज इंपॉर्टेंट, right? You have to trust your knowledge. Okay, what is fifth question is, with reference to India, considering the following statements. So we'll go fast from here because many of you understood कि हम क्या कर रहे हैं अभी, right? So he says there is only one citizenship and one domicile. Again, I told you पॉलिटी में स्टेटमेंट सही होना अच्छा चांस होता है, right? Yes, there is one citizenship. इंडिया में कोई dual citizenship का concept नहीं है, unlike USA. Yes, there is one domicile. You have one domicile only. Either you are from Haryana, you're from Delhi, Tamil Nadu, you have one domicile only, right? The first statement is correct. Only a citizen by birth can become the head of state. Now, here comes the trap. Actually, only a citizen by birth can become head of the state in USA. But it is not the case in president. तो इसने president of India, तो इसने कहीं ना कहीं president और citizenship को mix कर दिया. अब citizenship को क्वेश्चन उन्होंने, ये यूपीएससी का PYQ ही है, तो उन्होंने ऐसे इस क्वेश्चन को डाला है. तो सेकंड इज रॉन्ग. इवन अ नेचुरलाइज सिटीजन जिसको बाद में सिटीजनशिप मिलती है, वो भी इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, अनलाइक यूएसए जहां पे आपको यूएस का सिटीजन बाय बर्थ ही होना पड़ेगा.
The third statement है once foreigner once granted the Indian citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. This is very extreme. और citizenship deprive करने के बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज होते हैं, राइट? अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के, then also it can be denied. So yes, this statement is wrong. So answer comes out to be one only. First आपका second और third eliminate हो सकते हैं, right? This is how you have to go about these questions. ये एप्लीकेशन पार्ट है, ये सिटीजनशिप प्लस प्रेसिडेंट को दोनों को एप्लीकेशन पार्ट में लेके आ रहा है. तो ये आपको माइंड में रखना, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? सो अगेन इसका आप स्मार्ट पीटीबी एनालिसिस पढ़ सकते हो, राइट? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. अगेन रूल ऑफ लॉ से ही आया है क्वेश्चन. अब व्हेन यू रीड अबाउट द आर्टिकल 14 व्हिच इज राइट टू इक्वालिटी, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं. वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड इज equal protection of law. Equal protection of law. अब equality before law is borrowed from British Constitution, whereas equal protection of law is borrowed from American Constitution. ठीक है. अब दोनों में एक slight difference है. Equality before law is a negative concept. It says there should not be any special privilege for any other person, any person. No, even a person, rich or poor, high or low, is equal before the law. कानून के सामने अगर कोई इंसान अगर हाई पोजीशन पे भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी है, या प्राइवेट इंडिविजुअल है, या रिच और पुअर है, वो कोर्ट के सामने इक्वल है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड इज सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड. दिस में भी कंफ्यूजिंग कि ये लगता है कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ से है, बट नो, दिस इज फ्रॉम योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, बिकॉज इट सेज दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. उसी के ऊपर है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. थर्ड जो आपको दिख रहा है, एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस. जस्टिस की कहीं बात नहीं होती इक्वालिटी बिफोर लॉ में, राइट? ये कहीं ना कहीं से डीपीएस में बात होती है ना. तो यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी से क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज वाई इसमें ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस किया गया है. वी आर एक्सपेक्टिंग ए पॉलिटी में उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन जो लोग ज्यादा अच्छे से लक्ष्मी का एनालाइज किया और जिन्होंने सिर्फ रट्टा मारा है, राइट? तो ये आंसर विल बी ओनली वन. सो यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे प्रॉपर कंटेंट प्लस योर एनालिसिस, कि काफी जिन्होंने सोशल इक्वालिटी जो बात की टीपीएसपी, उन्होंने उसको मिक्स कर दिया था स्टेटमेंट में. दिस इज अबाउट सोशल इक्वालिटी, राइट? इक्वालिटी इज आल्सो मेनी टाइप्स है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी. दिस इज रिलेटेड टू सोशल इक्वालिटी, जस्टिस पार्ट, राइट? ओके, सेवन स्टेटमेंट अगेन, ये भी यूपीएससी के बाकी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं. सीएपीएफ में, सीडीएस में रिट्स का क्वेश्चन है ना. आई थिंक सीडीएस में वन ऑफ द टफ क्वेश्चन आया था जो था रिट का. यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, बट ऐसा आ सकता है, राइट? सो इसमें कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्या है वो आपको पहले याद रखनी है कि कैसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो प्रोहिबिशन है या मैंडेमस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर भी लग सकता है, गवर्नर के ऊपर भी लग सकता है. तो आपको ये एक्सेप्शन इसमें पता होना चाहिए. आपको क्या बताना चाहिए? एक्सेप्शंस, because UPSC will make these questions on exceptions, right? जो नॉर्मल है उनके ऊपर नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, राइट? तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, करेक्ट. रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैंडेमस इज टू कमांड. इसमें एक लिमिट उसका एक्सेप्शन है दैट प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर मैंडेमस नहीं लगा सकते. दैट इज रॉन्ग. Writ of prohibition is issued after a case has been decided by a lower court. No. After a case. No. यहाँ पे actually prohibition is issued before a lower court or tribunal delivers its judgment. मतलब judgment देने से पहले prohibition लगता है, right? It is like a preemptive step कि आपने गलत judgment देने से पहले ही कोर्ट कहता है कि आप ये judgment मत दो. जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट को कहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि आप ये जजमेंट मत दो, because you may make a wrong judgment, right? So this is also wrong. So I have seen कि 2 मेरा गलत हो चुका है. आई एम लेफ्ट विद 1, 3, 4 और 1 और 4. अब मेरा 3 भी गलत हो गया, तो आंसर शुड बी 1 and 4. और हाँ, रिट ऑफ सर्टिफिकेट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज, करेक्ट है. तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर इज 1 and 4. यहाँ पे ध्यान रखना स्पेशल, इनकरेक्ट भी होता तो क्या आंसर, अगर यहाँ इनकरेक्ट होता व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? 2 and 3. तो ध्यान रखना इन दोनों ऑप्शंस में स्विच करने का बहुत, बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड ना, वहां पे आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हो. तो ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट तो इसको मार्क कर लेना हमेशा.
आई ऑलवेज ऑल्सो टीच यू प्रैक्टिकल टिप्स, जहाँ से आप थोड़ा थोड़ा आपको जो एरर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, राइट करना. ओके, सो आई ऑल्सो गिव यू an announcement that in our team there is a very new entry, Abhishek Tiwari sir. So he will be also your super mentor. So he has already given you 2 UPSC interviews and he has been mentor to many rankers including Gamini Singla, Yash Chaudhary, All India rank 6, All India rank 3 Gamini Singla, and Shivangi Goyal, All India rank 177. He has helped her get 118 marks in prelims. So sir will be your very close mentor. So his mission will not be just to give mentorship. He wants कि अगर हम इस बार 50 बच्चों को हमने कैप रखा है, we will only have 50 people here, right? तो उन 50 को पर्सनलाइज मेंटरशिप देना, that we want कि उसमें से कम 80% का प्रीलिम्स निकले, because he also knows the pain जो स्टूडेंट सिर्फ 60 मार्क्स पे अटका है, because he has the capability कि अगर वो मेंस लिखे तो 60-70 में अटके के कारण वो मेंस भी नहीं लिख पा रहे, और they have capability to score 800 plus in मेंस. अगर इनको जस्ट नच करके प्रॉपर गाइडेंस 100 प्लस में ले आए, they can easily score a rank, right? So he wants कि उनका ये लिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो, right? And they want कि यहाँ आपका नाम है नेक्स्ट, you can be next year, right? Also there is a very, I think, a bit of confusion that our PTP program, that you may think that this is a test series. This is not a test series. If somebody is looking for a test series, I can suggest you many good test series which are available in the market, and you can talk to me personally. I will suggest you कि कौन से test series से क्या क्वेश्चन करना चाहिए, right? So I think you should avoid this program, right? Because this program is not a test series. I know you can get test series for free, but still you are still stuck at 60 to 80 marks. Test series तो हर को मार्केट में करोल में available है. We have a program which will help you increase at least 15 to 20 marks. This is our promise. We are not giving you कि हर एक टेस्ट में, we have given you topic wise things, है ना? तो ये जो स्मार्ट पीटी में एनालिसिस है, डेली आपका जो मेंटरशिप है, हर एक टॉपिक में आपको स्ट्रेंथ बनाना, राइट? आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, इवन अभी जैसे प्रीलिम्स क्लोज आ रहा है, आपको स्ट्रेस होगा, ये सब चीजें हमने यहाँ पे एक होलिस्टिकली कवर करना है. एंड द मेजर थिंग इज वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन जीएस, ठीक है? वी डोंट वांट दैट यू स्कोर 100 प्लस इन जीएस और सी साइड में यू स्कोर 45 मार्क्स, वो 66 मार्क्स ही नहीं बनेंगे आपके. वी विल टेक देम टुगेदर. ये होलिस्टिक हमारा रहेगा डेली में, पॉलिटी और सी सेट साथ के साथ ही चलेगा विद डिस्कशंस. हर एक क्वेश्चन को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका एंजाइटी कैसे ईज हो, और आपका अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, हर एक टॉपिक के अंदर आपको मास्टरी कैसे करना है, आपका टॉपिक वाइज मास्टरी के ऊपर फोकस करेंगे. दैट इज व्हाई वी हैव सेड 118 मार्क्स प्लस क्लब, because we are promising that we can increase your marks to this level, because we have ourselves practically experienced this, right? और जो लास्ट चीज which में सबसे ज्यादा क्लटर होता है, that is current affairs. We will do holistic 1.5 year current affairs through MCQ plus detailed notes. This will be a one short program जो आपको कहीं और जाने नहीं पड़ेगा. But again, I'll say if you want a test series, I will personally guide you very good test series which are available in Coaching Institute, but this will be a score improvement program. On top of that, me, Abhishek Tiwari sir and Rohit sir will guide you for the next 3 months and promise you that you will be able to easily clear prelims, right? And score at least 15 to 20 marks extra. So आपको जो एक साल का वेट है ना नेक्स्ट टाइम कि आपका प्रीलिम्स ना हो, नेक्स्ट ईयर फिर प्रीलिम्स देना पड़े, वो आपको ना करना पड़े, right? So we'll continue with our questions. Again, which of the following initiatives measures reflect the implementation of DPSP of state policy in Constitution of India? See, it is a question जो DPSP जो हमारे हैं उनको मैप कर रहा है कि कौन से उसके ऊपर लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए, राइट? कौन से उसके ऊपर लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स उसके ऊपर बेस्ड है, राइट? अब यू मे नॉट रिमेम्बर ईच डीपीएसपी, उसका सब आर्टिकल नहीं पता होंगे, मे भी मुझे भी भूल जाएंगे ना. तो जनरली व्हाट हैपेंस इज जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कहीं इसमें देखो, कहीं ना कहीं सारे डीपीएसपी से रिलेटेड है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि हाँ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज, हाँ बिकॉज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज के ऊपर या चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर या चाइल्ड हेल्थ के ऊपर डीपीएसपी में मेंशन्ड है. यस, दिस कैन बी डायरेक्टली मैप टू दैट.
मिड डे मील स्कीम, यस, ये मुझे एग्जैक्टली याद है कि आर्टिकल, आई थिंक इट इज 47 आर्टिकल, राइट? हाँ, आर्टिकल 47 लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है, तो मिड डे मील स्कीम करेक्ट हो गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यस, वुमेन के ऊपर अगेन डीपीएससी में बहुत जगह मेंशन्ड है, एग्जांपल बीइंग आर्टिकल 39 ए बी, जो जेंडर जस्टिस की बात कर रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, अगेन कहीं ना कहीं वो ट्राइबल्स पे या फॉरेस्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे डीपीएसपी में मेंशन्ड है, सो आंसर विल बी ऑल फोर। यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यार इनमें से कौन सा एलिमिनेट करना है। जनरल ट्रेंड है यूपीएससी का कि अगर वो कोई चीज मैप कर रही है ना, तो उसमें ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं लेके आएंगे, मतलब उसमें ये नहीं कि एलिमिनेट करने पड़ जाए, बिकॉज ये बहुत डाइसी क्वेश्चन है ना। जब अगर यूपीएससी इसका गलत स्टेटमेंट दे देगी तो कहीं ना वो ऑब्वियसली बात है, जो अगर क्या कहते हैं उसमें अगर उनके दो दो इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, तो एग्जामिनर विल नेवर वांट के दो दो इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन हो जिसमें आपको लगे कि हाँ इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं। ये बहुत ब्रॉड सोचेंगे इन चीजों में, यूपीएससी एग्जाम में ब्रॉड सोच के इसका आंसर देंगे, राइट? दे डोंट वांट कि इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बने, राइट? तो आपको ये दिमाग रखना है, प्रैक्टिकल चीज माइंड में। So this is DPSP हो गया। Next is with reference to Central Bureau of Investigation. Consider the following statements. It is a constitutional body. Again, UPSC is a constitutional body या statutory body या executive body. इनमें हमेशा confusion करना है। You know, CBI is also not a statutory body, है ना? It derives its power from Delhi Special Police Establishment Act. तो ये आपको याद रखना चाहिए, CBI is a exception है, right? तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, ये मुझे पता है। इट कैन इन्वेस्टिगेट अ केस इन द स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये जो स्टेटमेंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू सीबीआई। आई थिंक लास्ट ईयर, और यूपीएससी लास्ट के 2 साल करंट अफेयर को करंट ही मानता है, राइट? तो लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल ने जो अपना जनरल कंसेंट है सीबीआई को, ठीक है, 2 कंसेंट होते हैं, कोई जनरल कंसेंट होता है, एक होता है केस स्पेसिफिक। तो सीबीआई को अगर किसी स्टेट में इंटरफेयर करना है, अगर कोई केस को परस्यू करना है, लाइक फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में, तो उनको एक जनरल कंसेंट देती है स्टेट कि हाँ आप यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। बट अगर वो स्टेट अपना कंसेंट रिवोक कर दे, फिर सीबीआई वहां नहीं इंटरफेयर कर सकती, राइट? तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया? दे थॉट द सीबीआई इज एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं सेंटर के कहने पे इंटरफेयर करती स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में, तो उन्होंने वो कंसेंट ही रिवोक कर दिया, राइट? तो वहां से जो थर्ड स्टेटमेंट आई है, ठीक है, इसके रिलेटेड क्या कोर्ट जजमेंट्स हैं, क्या हाउ इट इज इम्पैक्टिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर मेंस। उस टाइम पे मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, राइट? और प्रीलिम्स में क्या बनेगा इसके बेस पे स्टेटमेंट। तो यस, इट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट केस इन स्टेट अगर उसको कंसेंट रिवोक कर दिया, तो ये थर्ड क्या हो गया? इज रॉन्ग। सो यू हैव कम अप के फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड सही है, एंड थर्ड रॉन्ग। आंसर विल बी आइदर ओनली 1 और ओनली 2। थर्ड says is superintendence of CBI in matters related to corruption lies with the Central Vigilance Commission. अच्छा, see this statement even I am not sure कि सही हो या नहीं हो, एग्जाम में I'm telling you, right? तो अगर यूपीएससी का एक थोड़ा सा रूल है which I think is एक अनसेट रूल है, that अगर उन्होंने एक बार आपको कोई कंसेप्ट पे चेक कर लिया ना, तो वो मल्टीपल टाइम्स उसके आपको वही नहीं करेगा मल्टीपल एलिमिनेशन करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 एलिमिनेशन कर चुका हूँ उसमें, है ना? तो यूपीएससी थर्ड बार एक और क्यों करवा रहा है मेरे से एक ही क्वेश्चन में, राइट? सो यू कैन कंसिडर के फोर्थ स्टेटमेंट एक बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट लग रहा है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है इसमें, तो दिस इज ट्रू। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको ना, यू कंसिडर दिस टू बी ट्रू। ऑल्सो सीबीआई और सीवीसी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो हो सकता है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं इनका रोल हो, राइट? तो ओनली 2 आंसर इज राइट। सी फोर्थ स्टेटमेंट आपको लेक्चर में मिल जाएगी, बट आई ऑल्सो वांटेड कि एग्जाम में भूल जाएगा आपको, तो आपको वहां माइंड में क्या रखना है। ये थोड़ा सा रूल है, अनसेट रूल है कि यूपीएससी ज्यादा एलिमिनेशन नहीं करवाएगा। आपने ऑलरेडी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना, तो यूपीएससी थर्ड कंसेप्ट पे आपको चेक नहीं करेगा, वो मान के चलो सेफ साइड पे वो सही ही होगा, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, विद रेफरेंस टू रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन ये दोनों में कंपैरिजन कहा गया, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स व्हेयरएज फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट, व्हिच इज करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई टू ओनली सिटीजंस, ये एक्सट्रीम है, बट दिस इज करेक्ट। Whereas fundamental duties apply to only citizens, whereas fundamental rights apply to both citizens and non-citizen. और कौन से नॉन सिटीजन को अप्लाई होते हैं फंडामेंटल राइट, या उनको अवेलेबल नहीं है, दैट शुड आल्सो नो, करेक्ट? लाइक टू लाइफ 21 इनको अवेलेबल है, 14 इनको अवेलेबल है, राइट? और कौन से अवेलेबल नहीं है? आई थिंक वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाले,
आर्टिकल 29-30 जो माइनॉरिटीज को अवेलेबल है वो नॉन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है फंडामेंटल राइट, ये भी आपको याद करना है राइट. फंडामेंटल ड्यूटीज वर अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन 1950. नो, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से अडॉप्ट हुआ था? आफ्टर इमरजेंसी. आफ्टर इमरजेंसी अमेंडमेंट लाई गई थी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट हुई थी राइट. So this was not a part of original constitution. अब यूपीएससी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डाल के इट वांट्स टू नो दैट यू नो के फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई थी. सिमिलरली ट्राइब्यूनल्स कब आए थे? क्या वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? नो, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही आए थे, है ना. ऑल्सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. दिस कैन ऑल्सो बी दिस कैन ऑल्सो कम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट एक्ट है. सो आंसर विल बी 1 and 2. ओके. सो यूपीएससी क्या टेस्ट करती है? जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल की बात करेंगे. सिटीजन को है अवेलेबल या नॉन सिटीजन को, ये ओरिजिनल वर्सेस एडिट लेटर. ऐसे ही आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है ना, तो यू हैव टू नोटिस कि क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, कौन सा जस्टिसेबल नहीं है. लाइक डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आपको ये ऐसे याद करना है कि इस बेसिस पे एग्जामिनर एमसीक्यू बना सकता है राइट. अगेन डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सोवरेन, करेक्ट, whereas in India constitution is supreme. So here you may get confused के sovereign और supreme में, है ना. इंडिया में constitutional supremacy है. अच्छा, there are limitations on the parliament. अच्छा, पार्लियामेंट जो सोवरेन का कंसेप्ट है कहाँ से? ब्रिटेन का है, ये आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है. बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जिसके कारण पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है. मींस इट इज नॉट सोवरेन रिलेटेड टू कि एक्सटर्नल कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती. इट इज रिलेटेड टू कि इंटरनल इंडिया में ऐसा पॉलिटी बना हुआ है हमारा कि पार्लियामेंट को जो पावर्स है वो लिमिट कैसे होती हैं. फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना. सो दीज आर द थिंग जो फेडरलिज्म हो गया, ये पार्लियामेंट की पावर्स को लिमिट करती है. पर ब्रिटेन में ऐसा कोई केस नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोडिफाइड राइट. सिमिलरली ब्रिटेन में जो फेडरलिज्म है इतना रिजिड नहीं है, उसमें मोस्टली सेंट्रलाइज सिस्टम है. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको ये पता नहीं सोवरेन और सुप्रीम में फर्क पता होना चाहिए. अगर इसको इंटरचेंज कर दो, इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम वेयरएज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो ये माइंड में हमेशा याद रखना है राइट. इन इंडियन सिस्टम देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लीगल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर इन एडिशन टू पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी. ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है. जब आप डिफरेंस पढ़ते हो बिटवीन पार्लियामेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन और इंडिया का, सो ब्रिटेन में व्हाट हैपेंस इज दैट एवरी मिनिस्टर हैज टू काउंटर साइन. एवरी मिनिस्टर हैज टू काउंटर साइन जो भी किंग के एक्ट्स होते हैं राइट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इंडियन प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट राइट. सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वेयरएज इन ब्रिटेन वो सिर्फ लोअर हाउस या हाउस ऑफ कॉमन्स का पार्ट हो सकता है. ये आपको पता होना चाहिए. A British constitution is largely unwritten, whereas Indian constitution is written and codified. This is correct. So answer will be only 3. Answer will be only 3. यहाँ पे आपको conceptual clarity check कर रहा है, right? Okay. The prior sanction of president is required to introduce a bill in state legislature that imposes restriction on freedom of trade and commerce. ये थोड़ा टॉपिक लोग इग्नोर कर देते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आर्टिकल 301 से 304 है ना. सो इसको भी आपको माइंड में रखना है दैट सर्टेन बिल्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में जिनके ऊपर आपको प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन चाहिए. वन विल बी योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अदर विल बी इफ का स्टेट का कोई भी बिल है जो हाई कोर्ट का पावर्स को लिमिट करने की कोशिश करता है. तो ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ये एक्सेप्शन है, यूपीएससी लाइक्स एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन से ही पूछेगा. A president enjoys absolute veto over state bill reserved by governor for president's consideration. Yes, president absolute veto enjoy करता है. अब absolute veto क्या होता है, suspensive veto क्या होता है, qualified veto क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने टेस्ट में पुट किया है. और इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए आपको. पॉकेट वीटो क्या होता है राइट, ये कब कब यूज हुए हैं, ये इनका डिफरेंस क्या है राइट. यहाँ कब कब उसको एब्सोल्यूट वीटो मिलता है, कब उनको सस्पेंसिव वीटो होता है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी इसके अराउंड क्वेश्चन बनाता है. Answer will be both 1 and 2, right? Okay. So 13 question जहाँ पे I think most लोगों को confusion हुआ. It says the parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing international treaties with consent of all the states, with consent of majority of states, with consent of states concerned, without any consent of any state. अब यहाँ पे there is a confusion कि क्या करेक्ट होना चाहिए,
है ना. बट इफ यू रीड द लक्ष्मीकांत, जहाँ उसके अंदर चैप्टर है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन दी स्टेट का फील्ड, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट, जो फॉर एग्जाम्पल अगर राज्यसभा है वो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करता है कि पार्लियामेंट कैन मेक अ मैटर इन स्टेट लिस्ट, तो वहां पार्लियामेंट की पावर ज्यादा हो जाती है. सिमिलरली इफ 2 और मोर स्टेट्स, है ना, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि पार्लियामेंट स्टेट की स्टेट की लिस्ट में लॉ बनाए, तब भी पार्लियामेंट की पावर ज्यादा हो जाती है. उसी के अंदर मेंशन्ड है दैट फॉर मेकिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज पार्लियामेंट को कंसेंट की नीड नहीं है, उसके पास सुपीरियर पावर है. तो इसका आंसर एक्चुअली इज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे ही डिफरेंस कम्स के आप अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ते हो क्या, क्योंकि पार्लियामेंट के टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. यू हैव सीन दैट इज वाई रीडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके हर एक सब टॉपिक को ऐसा आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका टॉपिक वीक है, कौन सा करेक्ट ऐसा ही है. राइट, अच्छा है. ओके, next will be consider the following statements. President, if the election of president is declared void by Supreme Court, all acts done by him or her before date of the decision become invalid. Lakshmikant directly mentioned that they do not become invalid, they remain valid because actually president is a rubber stamp. जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन नल एंड वॉइड कर देता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, सो 1 साल तो वो सीट पे बैठे रहे प्रेसिडेंट. राइट, अब उनका पता लगा दैट ही इज नॉट वर्दी टू बी प्रेसिडेंट, या उनको इम्पीच कर दिया जाता है. राइट, तो जो उन्होंने 1 साल तक कोई एक्शन लिए वो कहीं ना कहीं एग्जेक्टिव लेती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट. ही इज ओनली अ रबर स्टैम्प अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74. ही इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. करेक्ट. सो इन दैट केस दे स्टिल रिमेन वैलिड. उनके जो भी एक्शन लिए प्रेसिडेंट ने, ऑब्वियसली जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने जो बोला उसके बेसिस प्रेसिडेंट ने एक्शन लिए, दे विल रिमेन वैलिड. दिस इज रॉन्ग. Election of post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to be take place. No, ये आपको स्टार्टिंग में मेंशन है जब आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हो, दैट ये अलाउड नहीं है. अगर कोई भी फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका इलेक्शन नहीं हुए वो खाली पड़ा है, तो वो वोट नहीं करेंगे इसमें. उनके बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये नहीं होगा कि वो बंद हो जाएगा, वो चलता रहेगा. राइट. When a bill is presented to President of India, Constitution prescribes a time limit within which he must declare assent. There is no time limit. There is no time limit. Unlike this one, USA में I think pocket veto में 14 days का कुछ लिमिट होता है कि 14 days बाद President has to return a bill. इंडिया में वो भी नहीं होता है. इंडिया में this veto is very like a discretionary power of the President. उसको मिसयूज भी किया जाता है ना. आई थिंक नीट का बिल था फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का, वो प्रेसिडेंट ने काफी टाइम वीटो करके रखा हुआ था, है ना, एब्सोल्यूट वीटो करके रखा. गवर्नर ने प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने आई थिंक 1 साल उसमें बैठे रहे थे. सो इट इज ऑल्सो अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. मेंस में वहां कोट कर सकते हैं एग्जांपल, बट प्रीलिम्स में उसके कंसेप्ट के बेसिस पे ये आता है. राइट, तो आंसर विल बी डू रीड दिस एक्सप्लेनेशन, स्पेशली दिस पीटीबी एनालिसिस पार्ट. वे आपको बहुत इंसाइट देगा, स्पेशली यूपीएससी के प्रीलिम्स के बेसिस पे कि वहां पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. राइट, तो उसके ऊपर क्या एग्जामिनर का माइंडसेट है, ये वहां आपको हेल्प करेगा. Okay. Regarding a money bill, which of the following statement is not correct? A bill shall deem to be a money bill if it contains only the provision related to imposition, abolition, remission or alteration of any tax. This is directly mentioned in Article 110. So this is right. Not correct पूछा यहाँ पे. तो correct में देखना, not correct पूछा. Remember that. A money bill has provision for custody of consolidated fund of India or contingency fund of India. This is also mentioned in Article 110. A money bill is concerned with appropriation of money out of contingency fund of India. अब you have to see कि contingency fund है जो आर्टिकल 267 के अंदर आता है ना, आर्टिकल 267 के अंदर, उसके लिए अप्रोप्रिएशन के क्या करना होता है. दिस इज नॉट अ मनी बिल, उसके में नीड नहीं है. उसके अंदर विदाउट मनी बिल, बेस्ड ऑन एग्जेक्टिव एक्शन ओनली, आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, है ना. अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप बोलोगे कि स्टेटमेंट बी में भी लिखा हुआ है कि कस्टडी लिखा है, बट यहाँ भी कंटिजेंसी फंड लिखा हुआ है. अच्छा, कस्टडी रखना और अप्रोप्रिएशन करना दोनों में डिफरेंस है. अप्रोप्रिएशन मतलब पैसा निकालना, माइनस हो जाना. कस्टडी मतलब जस्ट उसका देखभाल करना है, ऐसा आप समझ लो. अगर आपको अप्रोप्रिएशन करना मीन्स पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, फिर आपको मनी बिल चाहिए. बट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से निकालना है तो आपको कोई मनी बिल की नीड नहीं होती. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो नॉट करेक्ट पूछा तो सी इज द आंसर.
ठीक है, मनी बिल डील्स विद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, ये भी उसके अंदर मेंशन्ड है ना, बहुत प्रोविजंस है, आप वो पढ़ सकते हो। बेसिकली आपको पता होना चाहिए अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे यूज होता है मनी बिल का या नहीं होता, राइट। और मनी बिल इज यूजुअली इन क्वेश्चन बिकॉज ऑफ मेनी कंट्रोवर्सी, राइट। जैसे आधार बिल को मनी बिल की तरह पास कर दिया स्पीकर ने, और मनी बिल कौन बताता है मनी बिल है कि नहीं, वो स्पीकर इज द अथॉरिटी टू डिटरमाइन इफ दिस बिल इज मनी बिल और नॉट, है ना। तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है आपको हमेशा, क्योंकि अराउंड दीज यूपीएससी एग्जाम विल टेस्ट योर नॉलेज। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द इलेक्शन फॉर Lok Sabha or state assembly, the winning candidate must get at least 50% of votes polled to be declared elected. See, इंडिया में there is a concept of 50% चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता, this you have to know। नहीं चाहिए होता, he has to gain only maximum votes, even if there are 100 votes, है ना। और फॉर एग्जाम्पल 4 कैंडिडेट हैं और 4 में से 3 कैंडिडेट ने अपना अपना फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 20 हो गया उनका, है ना। और जो एक कैंडिडेट है उसका सिर्फ 40 हुआ, है ना। तो ये 60% वोट्स है ना, ये बाकी कैंडिडेट की वेस्ट हो जाएंगी। जो 40 वाला है ही विल गेट इलेक्टेड इवन तो ही हैज नॉट स्कोर्ड 50%, ये 40% पे इलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक क्रिटिसिज्म भी है इंडिया का डेमोक्रेसी का, दैट इट रिजल्ट्स इनटू वेस्टेज ऑफ वोट्स। ये कहीं से मेजोरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, राइट। ही इज ओनली गेटिंग 40%, स्टिल 60% जो लोग कह रहे हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, स्टिल दिस पर्सन विल बी इलेक्टेड एज एमएलए और एमपी, है ना। दैट इज वाई रिप्रेजेंटेटिव जो फॉर एग्जाम्पल अभी जो है हमारा सिंपल मेजोरिटी से कहीं ना कहीं वो दे वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स अदर मेथड लाइक हाइब्रिड इलेक्टोरल मेथड्स, जहाँ पे वोट की वेस्टेज कम हो और जो एक्चुअल मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है वो आए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यूपीएससी इज चेकिंग ऑन कंसेप्चुअल एरर। अच्छा, और ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मेंशन है। अगेन आई टेल यू, यहाँ पे एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू रीड एनी अदर बुक। जैसे सुभाषी कश्यप, वो डीडी बसु, वो आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए हेल्प नहीं करेगी, मे बी लॉ एग्जाम के लिए कर सके, दैट इज ऑफ नो नीड, राइट। अच्छा, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को गोज टू ऑपोजिशन। सो यूपीएससी इसमें क्या ट्रैप कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ये एक ट्रैप है। यहाँ पे जो कन्वेंशन है, फॉर एग्जाम्पल स्पीकर की पोस्ट मेजोरिटी को जाती है, डिप्टी स्पीकर की ऑपोजिशन को जाती है, ये कन्वेंशन है, पॉलिटिकल कन्वेंशन जो पॉलिटिशियंस ने खुद से बना लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो जब भी यूपीएससी लिखे ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू हैव टू बी अलर्ट कि यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम जो एग्जामिनर है मिस्टेक करेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, आंसर विल बी नाइदर 1 और 2, राइट। सो इंडिया के जो सिस्टम को बोलते हैं दैट इज फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो आपको मैंने समझाया यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कंपेयर टू मेजोरिटी सिस्टम जो 50% होता है। तो उन दोनों में डिफरेंस बताना चाहिए आपको, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कन्वेंशन, यहाँ पे यूपीएससी फंसेगा, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यू हैव टू लुक आउट फॉर दीज थिंग सो दैट आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए कि मुझे यहाँ ज्यादा फोकस देना ऑप्शन पे, यहाँ एग्जामिनर ज्यादा गलती कर सकता है, राइट। ओके, द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय लोकसभा, तो उसका क्या रेपरकशन, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, द बजट इज रेफर्ड टू राज्यसभा फॉर सजेशंस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे मोस्टली लोग को कंफ्यूज हो गया इसमें चारों ऑप्शंस में। इफ यू नो दैट अगर एनुअल यूनियन बजट जो है इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 112, ठीक है, और इसको पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, करेक्ट। अगर एक गवर्नमेंट अपना बजट पास नहीं कर सकती ना, दैट अमाउंट्स टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट गवर्नमेंट, तो दैट गवर्नमेंट विल फॉल। सेकंड, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए दैट देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बजट पास नहीं होता है, नॉट ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, द होल काउंसिल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, राइट। तो उसके आंसर इज गवर्नमेंट यहाँ पे गिर जाएगी। अगर बजट नहीं पास हुआ तो ऑब्वियसली उनके पास मेजोरिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस पास होगा और गवर्नमेंट गिर जाएगी। दिस इज द आंसर। तो दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको थोड़ा एलिमिनेशन से यहाँ आपको देखना होगा कि आपकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कैसे चलता है, क्या क्या चल रहा है, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट गिरी थी उसके हिसाब से, तो वही लैक ऑफ मेजोरिटी के कारण गिरी थी, है ना। तो ऐसा आपको ध्यान रखना उन चीजों में, राइट। सो नेक्स्ट विल बी योर 18th क्वेश्चन।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 358 एंड 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 358 एंड 359 जो कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने एक चीज बनाई थी, आर्टिकल 358 रिलेटेड टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 359 इज रिलेटेड टू ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20, 21, राइट। अब ये मेरे को बेसिक फंडा पता लग गया कि हाँ यहाँ पे 8 से या 9 ये मुझे पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 358 सस्पेंड्स द फ्रीडम गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 चलती है, लगती है। वेयर आर्टिकल 359 वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है, वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नहीं हटाता, वो जस्ट ये हटाता है कि उनकी एनफोर्समेंट कोर्ट्स में वो नहीं होगी, और वो भी दो फंडामेंटल राइट्स जिनका एक लिस्ट में नाम दे रखा है, जो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगा आर्टिकल 359 के अंदर कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 27 अप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ इन पे लगेगी, वो इनके रिलेटेड लॉस पे। अच्छा, इनके अंदर बहुत सेफगार्ड्स भी थे, फिर वो कौन लेके आया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट, राइट, बिकॉज अंडरस्टूड के इमरजेंसी का मिसयूज किया गया है। तो उसमें क्या क्या सेफगार्ड थे कि आर्टिकल 358 will only apply if there is war on the grounds of only on grounds of war or external aggression, not on armed rebellion. अगर यहाँ पे armed rebellion mentioned होता तो that would have been wrong. तो exception, या इसकी exception क्या होगी 358 की? armed rebellion पे apply नहीं होगा। Article 359 empowers the president to suspend the right to move any court for enforcement of specified fundamental right. This is correct. After 44th Amendment, Constitutional Amendment Act, Article 358 applies to all types of emergency. No, I told you, अगर आर्म्ड रिबेलियन पे है तो ये अप्लाई नहीं होगा, राइट। दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी ओनली 2। सो आपको ये याद रखना एक्सेप्शंस क्या हैं। जैसे आप ये बना सकते हो आर्टिकल 358 ओनली आर्टिकल 19 प्लस ऑटोमेटिक, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, राइट। आर्टिकल 359 कोर्ट रेमेडी होता है, प्लस ये आर्टिकल 20, 21 पे अप्लाई नहीं होता, और 44th अमेंडमेंट एक्ट ने सेफगार्ड्स रखे थे। दिस इज द बेसिक, लाइक एक फ्लो चार्ट बना के इजीली रिमेंबर कर सकता हूँ, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ गवर्नर्स आर डिस्क्रिशनरी, ठीक है। अब गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर में दो चीजें हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ और भी टफ कर सकता था, विच आई टेल यू कैसे। अगर मैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस ऑफ गवर्नर, है ना। अब जैसे यहाँ पे इफ यू सो के रिजर्विंग अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रेकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल टू द स्टेट एंड अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर, दीज ऑल आर पावर्स ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर है, राइट। अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर स्पेशली ड्यूरिंग हंग असेंबली, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टेल मी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस, तो ये थर्ड नहीं आएगा, है ना, बिकॉज ये एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। बट जनरल डिस्क्रिशन पूछा है तो 1, 2, 3 ऑल विल बी करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यूपीएससी कोई वर्ड प्ले तो नहीं कर रहा है कि सिचुएशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इन दोनों में डिफरेंस करके, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, बिकॉज एग्जामिनर विल वांट कि आप ये गलत क्वेश्चन करो कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो आपको माइंड में रखना है, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है that how you have to eliminate this and how this can be a very high probability theme question. Why? Because federal tensions, governor is always in, कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है, राइट। तो ये आपको दिमाग में रखना है। Okay, so we are approaching to one of the last questions, which is question number 20. Consider the following statement regarding minority rights under Constitution of India. See, Constitution defines the term minority, कहीं नहीं mentioned. कहाँ ये डिफाइंड है? It is defined in the National Commission for Minority Act 1990. It is defined there. Constitution में कहीं term minority डिफाइंड नहीं है। अब Constitution में क्या चीज डिफाइंड है, क्या चीज डिफाइंड नहीं है, यूपीएससी उसमें कंफ्यूज करेगा। तो you have to also understand कि आपको पता होना चाहिए कौन सी दो चार चीजें डिफाइंड है, राइट। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफाइंड है, वो आपको पता होना चाहिए। अब कौन सा टर्म डिफाइंड नहीं है, लाइक माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है, है ना। हिंदू टर्म डिफाइंड है, अब कौन सा और टर्म नहीं डिफाइंड है, आपको पता होना चाहिए। All minorities, whether based on religion or language, have right to establish and administer education institution of their choice. This is correct. ये आर्टिकल 30 के अंदर mentioned है, right? तो ये correct हो गया। तो the state cannot discriminate in the granting aid to education institution on the ground that they are managed by a minority. This is also correct. So answer will be only 2. तो आर्टिकल 29-30 ये भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ट्रैप हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रैप होते हैं। अब आर्टिकल 29 वर्सेस 30 का डिस्टिंक्शन,
आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर, वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों पे अप्लाई होता है. वेयर एज आर्टिकल 30 विच इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटी, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज पे अप्लाई होता है, नॉट ऑन दी मेजोरिटी. तो ये आपको ध्यान रखना, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, राइट. That is the concept. So last question is about National Commission for Backward Classes, which is about the constitutional और non-constitutional bodies का ये टॉपिक है. तो ये जनरली टॉपिक रीड नहीं करते, बिकॉज लक्ष्मीकांत हम ट्राई करते हैं फर्स्ट से लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे. सो व्हेन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का टॉपिक आता है, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, है ना. तो इसको प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है, विच द पीपल जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई टेल देम लेटर. तो यहाँ पे आई टेल यू कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में उन्होंने 2-4 चीजें पूछनी है. एक तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं. हाँ, इनिशियली इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट वाज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय आर्टिकल अमेंडमेंट 102. आपको ये पता होना चाहिए. अब 100 अमेंडमेंट क्या है, 101 क्या है, 102, 103, 104, 105, 106. यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं. आई जस्ट while doing this question आपको ये भी रिवाइज करा दूंगा. 100 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश में जो लैंड एग्रीमेंट हुआ था ऑन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स. 101 किसका है, जीएसटी. 102 एनसीबीसी. 103, 104 और 105. 103 is again related to reservation, that is EWS. 104 is removal of these जो एंग्लो इंडियंस थे ना, उनको अर्लियर उनकी सीट्स रिजर्व थी पार्लियामेंट में, 2 सीट्स थी. आई थिंक वो रिमूव हो चुका है, दैट इज 104. 105 क्या है, 106. 105 इज अगेन रिलेटेड टू ओबीसी, दैट जो स्टेट्स हैं वो अपनी ओबीसी की सेपरेट लिस्ट बना सकती है. ठीक है, अर्लियर देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक लिस्ट होनी चाहिए ओबीसी की, बट बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया कि नहीं, स्टेट भी अपनी एक अलग लिस्ट बना सकती है. और 106 कौन सी है, नारी शक्ति वंदना एक्ट, जो रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एज स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह में. तो वहां पे आपका 106 अमेंडमेंट हो गया. तो ये आपको अब ये रिवीजन भी हो गया. ओके, सो इट वाज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 102 अमेंडमेंट एक्ट. ये अगेन वही चीज है, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट. इट हैज पावर्स टू इंक्लूड और एक्सक्लूड कम्युनिटीज फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी. नो, ये पावर सिर्फ अब प्रेसिडेंट के पास है, जो नोटिफिकेशन निकालेगा ऑन बेस्ड ऑन अ प्रॉपर लॉ पास्ड बाय अमेंडमेंट डन बाय पार्लियामेंट. अभी पावर इनके पास नहीं है. तो थर्ड इज रॉन्ग. तो आंसर विल बी कितने करेक्ट हैं, सो बी, ओनली 2 विल बी करेक्ट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पावर्स टू इंक्लूड और एक्सक्लूड कम्युनिटी फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी वेस्ट विद द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल अंडर आर्टिकल 342A, नॉट डायरेक्टली बाय द कमीशन. सिमिलरली शेड्यूल कास्ट की लिस्ट कैसे बनती है, एसटी की लिस्ट कैसे बनती है, कौन नोटिफिकेशन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है ना. तो पूरे इंडिया के लिए एक लिस्ट होती है, हर स्टेट के लिए डिफरेंट होती है. इनमें यूपीएससी ट्राई करेगा आपको कंफ्यूज करने का, राइट. तो आपको ध्यान रखना है. सो विद दैट वी हैव डन विद द फर्स्ट सेशन, राइट. इफ दैट हैज हेल्प्ड यू, राइट, तो यू कैन राइट योर कमेंट्स. आप आगे हमसे रीच आउट भी कर सकते हो, कौन से आपको टॉपिक लगा. बट द मेन थिंग इज यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट. अब ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, अभी आपको नया कोई बुक नहीं पढ़ना है, कोई नया आपको चीज नहीं पढ़नी. यू हैव टू ट्रस्ट कि जो ये टेस्ट होंगे दे आर होलिस्टिकली प्रिपेयर्ड. जो मेंटर्स है आपको सही तरह गाइड कर रहे हैं. आपको प्रीलिम्स में स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क. हार्ड वर्क आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हु आर अटेंडिंग दिस सेशन और व्यूइंग दैट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, you may have done at least 1 to 2 years of preparation. You have done all test series. Still आप वही 60-70 की रेंज में बैठे हो. There has to be some reason, right? So I'll tell you that lack is that smart work. तो जो हमने आज किया on basis of that you can apply that to your UPSC PYQ. अभी I told you MCQ से रिवीजन करना है आपको. That is very important, right? तो उसके बेसिस पे you will at least see at least 10 to 20 marks jump in your UPSC prelims, right? So now is the time to be more focused as the notification has also come and you know कि competition इस बार और ज़्यादा होगा, right? So with that we'll end this session. Thank you everyone.